जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। साथ संगत जी, बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਲਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਕਾਨਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਤੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਈਵਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੌਕਿਕ ਚਮਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੈਨਲ ਦੇ ਓਨਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु महाराज। सदा शिव जी भोलेनाथ, वाकई जो उन्होंने नाम है जी भोलेनाथ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸਾਂਸ, ਹਰ क्षण, ਹਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੱਟੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਸ਼ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਯੁਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮਦ ਮਤਸਰ, ਲੋਭ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ, ਜੈਲਸ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਵਸਤ ਕਰਕੇ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ, ਭਗਤੀ ਦਿਓ, ਮੁਕਤੀ ਦਿਓ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਦੇਵੋ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਆਦਿ ਦੇਵ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਭਵ ਬੰਧਨ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਦਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਨਿਮਾਣੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਦਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਿਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਰ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਹਰ ਭਵਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਖੈਰ ਜੁੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ 1-1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਜੈ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 100% ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 100% ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ, ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਰਫ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ
ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ 100% 100% 100% ਸਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਸ਼ਟ ਸੰਕਟ ਮੁਸੀਬਤ ਸਭ ਹਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 100% ਸੱਚ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਕੂਰੇਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਪਥ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 100% ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸੀਬਤ ਸੰਕਟ ਸਭ ਹਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਬਟ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਹੀ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ 100% ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਫਟ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਮੰਗੋ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਰੀਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਡਿਵਾਈਨ ਸਮੈਲ, ਫਰੈਸ਼ ਰੋਜ਼ਿਸ ਸਮੈਲ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਵਨ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਭੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਉਸ
ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਕਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ 100% ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। A to Z ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਸਟ ਸੋਚਿਆ, ਬੈਸਟ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ 100% ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਓਨਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਕਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਕਸ਼ਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਔਰ ਅਪਮਾਨ ਔਰ ਧੱਕੇ ਔਰ ਧੋਖੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਦਿਓਗੇ, ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਕਸ਼ਣ ਸਾਥ ਦੇਵੋਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। एक इंसिडेंट से शुरू करूंगी, फिर अपनी कहानी बताऊंगी। एक दिन मैं YouTube पर ऐसे ही भजन सुन रही थी। मेरा कोई नहीं सहारा, मेरा हाथ पकड़ लेना गुरुजी।
उसके 3-4 दिन बाद की बात है। मैंने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहनने के बाद मैंने ऐसे ही मोबाइल उठाया, उसमें यूट्यूब खोला तो टॉप पर क्या आता है, वही भजन फिर से मेरा हाथ पकड़ लेना गुरुजी, जैसे गुरुजी याद दिला रहे हैं कि जो मांगा था हाथ पकड़ लेना, वह पकड़ लिया। मैं अभी अपने ससुराल से दूर हूँ। मैंने 2023 में बहुत दुख देखे, अंदर से एक तरह से पूरी टूट गई थी, पर गुरुजी ने मुझे हर दुख से निकाला। उनकी ब्लेसिंग्स से मैं हील हो रही हूँ धीरे धीरे। शादी से पहले मैं डांस सिंगिंग सब करती थी, पर पता नहीं ये सब फेस करने के बाद मैं खुद को कहीं खो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड भी शायद मेरे को ही गलत समझते हैं, या पता नहीं क्या बात है। जून में मैं और मेरे हस्बैंड मिले भी थे, पर उसके बाद ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना स्टैंड मेरे लिए फिर से बदल लिया। उनके ऐसे बार बार बदलने से बहुत दुख होता है मुझे। रिश्ते में ये प्रॉब्लम की वजह से वह भी दुखी होते होंगे। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या वजह है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो ऐसे वह बार बार बदलते हैं। मुझे भी कोई क्लैरिटी नहीं देते एक फिक्स्ड बात की, वह चाहते क्या है। मेरी साइड से मैंने कभी किसी को इंटेंशनली दिल नहीं दुखाया। मैंने तो हमेशा रिश्ता निभाने की कोशिश करी थी। सब फेस करने के बाद भी यही सोचती हूँ कि गुरुजी सब जानते हैं, मैंने इतना दुख लिया है, पर गुरुजी मेरा ख्याल रखते हैं। और अब आगे जो भी सिचुएशंस होगी गुरुजी डेफिनेटली मुझे फेस करने की हिम्मत भी देंगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, मैं नेपाल रूपंदेही से बोल रही हूँ। मैं छोटा सा शुक्राना संगत शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कितने चैनल पे मैंने शुक्राना संगत सत्संग शेयर किया, लेकिन एक भी अपलोड नहीं हुआ है। अब आपके भरोसे हूँ मैं। मेरे दिल ही रखने के लिए छोटा सा एक सत्संग यूट्यूब में अपलोड करा दीजिएगा। गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं तू सत्संग शेयर कर। सत्संग शेयर तो करती हूँ, अपलोड नहीं हुआ। शायद गुरुजी की मर्जी ही नहीं है, शायद मेरे में ही कोई कमजोरी है, इसीलिए नहीं हो पा रही है संगत जी। लेकिन आज मैं गुरुजी कल कह रहे थे शुक्राना संगत शेयर करी, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है। हाँ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल ना मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मम्मी मेरी जॉब में ना सैलरी की बढ़ोतरी हो गई है, खुशी की खबर है मम्मी, ऐसा कहा। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आप कह रहे थे खुशी की खबर आने वाली है, खुशी की खबर आई है गुरुजी। कल मेरे बेटे ने खुशी दी है। और गुरुजी दो खुशियाँ आने वाली है तेरे घर में, गुरुजी ने कहा था। सो यही शुक्राना कहना चाहती थी। आज मैं लगभग मैं बाज़ार सिटी में गई थी। मेरे दिया जो बालती हूँ ना तिल के तेल से, तेल ख़त्म हो गया था और चंदन की टीका ख़त्म हो गई थी। मैं बाज़ार मार्केट में गई थी। मैं गांव में रहती हूँ संगत जी। मैं खेती किसानी का काम करती हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा फुर्सत तो नहीं होती है। एक दो संगत सुनती हूँ रात को। खेतों में काम करने के कारण मैं थकी होती हूँ। एक दो संगत सुनते सो जाती हूँ। तो फिर आज मैंने वो तिल का तेल और वो खरीद। मैं कल संगत सुनते सुनते ग्रीन कलर का बटरफ्लाई के बारे में जिक्र हुआ था। मैंने कहा गुरुजी ग्रीन कलर का भी कोई
बटरफ्लाई होता है। सच गुरु संगत जी, आज मैं मार्केट में गई ना, ग्रीन ही कलर के जितने भी देखती हूँ ना मैं, हल्का ग्रीन कलर का बटरफ्लाई। मैंने कहा गुरुजी आपने, मैंने मन में कहा था और आपने दिखा भी दिया गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हर पल का शुक्राना। मैं कैसे आप मेरे मन की बातें को ऐसे समझ जाते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही। बाज़ार से जब आई तो बंदर, बहुत सारे बंदर थे। मैं कल शनिवार है, शनिवार के लिए मैं फिर लड्डू भी लेके आई थी। मैं हनुमान जी को लड्डू देना भी चाहती थी ना, मैं अकेली थी, मैं डर गई। बहुत सारे बंदर थे। मैं हाथ जोड़ के जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, मेरे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बाद में जब दूसरी बार आऊँगी ना, केला खरीद के लाऊंगी। मुझे आज के लिए रास्ता मत रोको, मुझे जाने दो। चुपचाप वो बंदर ना साइड लग गए गुरुजी। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हनुमान जी के भी दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और मेरे अंकल जी की भी गुजरात में डायमंड कंपनी में जॉब करते हैं, उनकी भी सैलरी में बढ़ोतरी हो गई है। गुरुजी कह रहे थे तेरे भी हस्बैंड के भी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, शुक्राना करें। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। बस यही आज का संगत, शुक्राना संगत यही समाप्त करती हूँ। दूसरे संगत की तैयार करूँगी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप लास्ट में करने लगी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय जय जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम जगदीप है। मैं जालंधर से सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे पता नहीं था कि कैसे शुक्राना करते हैं। मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी 2 महीने हो गए हैं। मुझे गुरुजी के बारे में एक रिश्तेदार ने बताया था। जिस दिन से मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी हूँ, उसके बाद से बहुत कुछ अच्छा हुआ है। मैं पिछले 2 साल से मोबाइल लेने की सोच रही थी और मेरे बेटे ने मुझे मोबाइल ले दिया। फिर बेटी ने मुझे हेडफोन भी लेकर दिए। हर रोज गुरुजी के मैसेज आते थे, जप किया कर, सुखमनी साहिब का पाठ किया कर। मैंने जप और सुखमनी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया। एक दिन रात 3 बजे के करीब मैं नींद से जाग गई। मैंने मंत्र जाप किया और दोबारा सो गई। फिर आधी नींद में मैंने गुरु नानक देव जी के दर्शन किए, गुरु जी के दर्शन किए। मैंने गुरु जी को प्रणाम किया और कहा मुझे गुरु गोविंद साहब के दर्शन भी करने हैं। तो मुझे गुरु गोविंद साहब जी के दर्शन भी हुए। उस दिन मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ।
और कहीं से भी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी के चरणों में आज एक शुक्राना शुरू करने से पहले मैं एक मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, कहने को तो बहुत कुछ है, जो कि कुछ बातें मैं कह नहीं पाऊँगी और कुछ बातें अभी रिसेंटली जो भी मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी को मैं बहुत टाइम से मतलब देखती थी कि लोगों के घरों पे उनके स्वरूप हैं, और उनके बारे में बस इतना ही जानती थी कि जैसे लोग सबके अपने अपने गुरु होते हैं, ऐसे ही होते होंगे कोई, मतलब है ना, महापुरुष। और बस इतना सा ही जानती थी। उसके बाद जनवरी में मेरे साथ, जनवरी 2024 में, मतलब ये साल स्टार्ट होते ही इतना मतलब बड़ा पहाड़ टूटा मेरी ज़िंदगी में कि मैंने मेरे मासी जी के माध्यम से, मतलब मेरे मासी जी मुझे हमेशा बोलने लगे कि बेटा, जनवरी में ही, बेटा गुरुजी के सत्संग सुन, गुरुजी के साथ जुड़, सब कुछ ठीक होगा तुम्हारी लाइफ में। लेकिन उस वक्त मैं इतनी मुसीबतों में से निकल रही थी कि मैं अपने मम्मी को फ़ोन करके बोलती थी कि मासी जी को समझना चाहिए कि मतलब मैं अभी तकलीफ़ों में, मैं ये सब, अभी मेरा मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाता है ना, मैं सत्संग सुनने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तकलीफ़ों से निकल रही हूँ कि मैं, मासी जी क्यों नहीं समझ रहे, बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि सुनो सुनो सुनो। खैर मम्मी ने बोला कि बेटा चलो बड़े हैं, सुनो सबकी, करो अपने मन की, अगर तुम नहीं कर पा रही हो तो कोई बात नहीं, मासी जी को भी कुछ ऐसा मत बोलो। मैंने कहा ठीक है। लेकिन कहते कि मासी जी का ध्यान उस वक्त मेरी तरफ था, तो गुरुजी ने मुझे स्वीकार कर लिया था। गुरुजी मेरी ज़िंदगी में मतलब आ आ गए थे, और ये मैं ही नहीं समझ पाई। इस जनवरी के बाद ये अगस्त तक मेरी ज़िंदगी में वो कुछ भी बीता जो कि एक आम बात नहीं है, जिसको कहते हैं कि कहानियाँ, जिसको हम सपनों में देखते हैं, स्टोरीज़ में सुनते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ बीती, जो कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में नहीं बीतती। मैं हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है, इतनी परीक्षा, इतनी कड़ी परीक्षा भगवान मेरी क्यों ले रहे हैं, समझ ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद मैं अभी गुरुजी के साथ जो मैं प्रॉपर तरीके से जुड़ पाई, वो मैं जुलाई से जुड़ी, जुलाई 1 से, क्योंकि मैंने अभी घर अपना, मेरा घर है लेकिन वो किसी और जगह पे है, किसी और सिटी में है। वो घर मैं सेल करना चाहती हूँ, किसी कारणवश मैं वहाँ रह नहीं पा रही। घर हालांकि है मेरे पास अपना, पर मैं वहाँ रह नहीं पा रही, तो उस घर को मैं बेचना चाहती हूँ ताकि मैं अपने मायके में ही कहीं आसपास कोई घर ले सकूँ, और यहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, हम लोग आराम से रह सकें। तो मैं अपने मम्मी के घर पे शिफ्ट हुई वहाँ से आके, और मेरे मम्मी को मैंने बोला कि ऐसे घर चाहिए, लेकिन ऐसी ऐसी मुसीबतें आई कि मैं खाना खाने से भी मोहताज हो गई। एक टाइम का खाना मिलता था तो ऐसा लगता था कि अगले टाइम मिलेगा या नहीं, लड़ाई झगड़े, घर पे कलेश, बहुत कुछ फेस किया। और वो सब चीज़ें फेस करते करते टूट गई थी, मैं पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन गुरुजी के मैसेजेस फ़ेसबुक पे आते थे कि बेटा, मुझे मतलब जो भी मन में मेरे सवाल होते हैं उसके जवाब मुझे फ़ेसबुक पर मिलते थे। और इस वक्त भी मैं आप सबसे संगत जी कहना चाहती हूँ कि मैं जब ये सत्संग सुना रही हूँ तो मुझे अपने चारों तरफ, मैं अपने घर के बाहर ही गैलरी में बैठी हूँ, और शांत जगह है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ बैठकर सत्संग किया जाए। और यहाँ पे मुझे बटरफ्लाइज़ दिख रही हैं कंटिन्यूअसली, और मैं कहीं बाहर भी निकलती हूँ, ज़्यादा मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, लेकिन हालांकि जब भी मैं जैसे जनरल स्टोर तक भी जाती हूँ तो वहाँ पर भी मुझे पूरे रास्ते ऐसा लगता है कि मुझे गुरु जी कह रहे हैं कि मैं बेटा तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मेरे डैडी नहीं हैं, 2 साल पहले हमारे डैडी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, और उनके बाद बेटियों की ज़िंदगी तो बहुत मायूस हो जाती है, हम 2 बहनें ही हैं। और मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि हर पल, आज तक भी, मतलब शादी के इतने सालों बाद तक भी, बेटियों को ऐसा लगता है कि हमारा पिता है, हर चीज़ के लिए हम अपने डैडी से बोल सकते हैं। तो क्योंकि मेरे ससुर जी भी नहीं, सास भी नहीं, तो
जब डैडी चले गए तो ज़िंदगी बिल्कुल अकेली पड़ गई, अनाथ जैसा फ़ील होने लगा। मम्मी हैं बट मम्मी तो खुद टूट चुके हैं डैडी के जाने के बाद, उनका भी जीवन साथी चले गए। तो वो चीज़ों के बाद अब गुरुजी हैं मेरे पास, तो अब ऐसा लगता है कि मेरे डैडी की कमी पूरी हो गई है। मेरे डैडी हैं मेरे साथ हमेशा, हर पल एहसास होता है, गुरुजी एहसास करवाते हैं। हर चीज़ जो मैं माँगती हूँ, जैसे अपने पिता से माँगती थी, उसी तरह से जब मैं गुरुजी के सामने कोई बात भी कर रही होती हूँ, उसका मुझे तुरंत उसी वक़्त फ़ेसबुक पे टेलीपैथी के थ्रू मुझे मतलब मैसेजेस मिलते हैं। और मैं अभी रिसेंटली आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम लोगों ने घर शिफ्ट किया लास्ट मंथ, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि देखो रेंट पे घर देख लो, और जो है कि हम लोग शिफ्ट करेंगे, अभी मैं तुम्हें कोई खर्चा नहीं दे सकता हूँ, थोड़ा सा हाथ तंग है। और इस महीने जब शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट करने के बाद मेरे हस्बैंड हमें छोड़कर मतलब वो क्योंकि वो मार्केटिंग लाइन में हैं तो वो टूर पे ही रहते हैं, वो चले गए। 1 महीना उनके बिना बहुत मुश्किल से गुज़ारा। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं 1 हफ़्ते में आता हूँ वापस और मैं राशन वग़ैरह डलवा के दूँगा, लेकिन वो 1 हफ़्ते में नहीं आ पाए, उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा। पैसे के लिए भी तंग थे, तो वो बोलते मैं आऊँगा भी तो क्या करूँगा, कुछ तुम्हारे लिए कर नहीं सकता, तो तुम जैसे-तैसे भी अभी वक़्त काटो जब तक सैलरी नहीं आती। ख़ैर इस महीने जब उनकी सैलरी आई, तो बेटी की फ़ीस और छोटे-छोटे एक्स्ट्रा खर्चे जो होते हैं घर के, वो निकालने के बाद फिर से पैसे इतनी तंगी हो गई हाथ में कि उन्होंने मुझे फिर वो 14 तारीख को रात को आए, मतलब 14 अगस्त को, तो रात को आने के बाद मुझे हम लोग बाहर ही ऐसे लेटे हुए थे, मम्मी और बेटी सो गए थे, तो मुझसे बात कर रहे थे कि देखो अभी इस महीने भी पैसे हाथ तंग हो गया है कि कैसे करेंगे। मैंने उनको बोला कि ठीक है, मायूस मन से ही बोला कि ठीक है आप थोड़ा सा राशन डलवा दीजिए, जैसे मर्जी मैं मतलब गुजारा कर लूँगी 1 महीना और सही। जो लोग भूखे सोते हैं उनसे तो बेटर ही होएगी लाइफ कि चलो खाना तो खा ही रहे हैं ना, हम लोग कुछ भी बना के खाएंगे। तो ये बातें करते-करते हम सो गए। और सुबह मुझे मतलब बिल्कुल भोर के टाइम पे 4-5 बजे के करीब मुझे सपना आ रहा है कि धन वर्षा हो रही है, गोल्ड के कॉइन्स मुझे आसमान में से गिरते नज़र आ रहे हैं। ये तो पता ही नहीं कि गुरुजी सारी रात हम तो सो गए, लेकिन गुरुजी तो सारी रात परेशान थे हमारे लिए। तो उन्होंने जैसे ही हम लोग सुबह मॉर्निंग में उठे, हमने चाय वगैरह गुरुजी को भी दी और हम भी पीने बैठ गए। तो एकदम से मेरे हस्बैंड ने चिल्लाया मुझे, अरे देखो मेरे पैसे आ गए। तो मैंने सोचा कि गुरुजी का कोई मैसेज पढ़ रहे होंगे कि पुत्र आज धन वर्षा होने वाली है या कुछ भी ऐसा, तो देखो मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा क्या आया, अभी सुबह सुबह मजाक कर रहे हो। तो बोलते नहीं सच में देखो मेरा अकाउंट, उन्होंने अपना अकाउंट चेक करवाया तो उसमें पैसे सफिशिएंट अमाउंट था जो कि हमें नीड थी इस वक्त, जो कि हम सोच नहीं सकते थे कि इस वक्त आ जाएगा। 15 अगस्त का टाइम छुट्टी होती है ना, तो मतलब बैंक भी बंद होते, तो ऐसे में पैसा आना बहुत बड़ी बात है। तो एकदम से मेरे कहाँ तो हम लोग रात को सोच रहे थे कि राशन आधा लेंगे, आधे से भी कम लेंगे, और कहाँ मेरे हस्बैंड ने उसमें ऐड ऑन करवाई चीज़ें। उन्होंने मुझे बोला ये इतना लिखा है, इसको बढ़ाकर इतना लिख लो, इसको बढ़ाकर, उन्होंने हर चीज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ राशन मुझे मेरे हस्बैंड डलवाकर, और देन नेक्स्ट डे वो चले गए मतलब टूर के लिए। 16th यानी कल वो मॉर्निंग में निकल गए। निकलने के बाद सारा दिन उन्होंने ड्यूटी करी। रात को जब हमारी बात हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो मेरा टीएडीए भी आ गया। मतलब ये तो सच में धन वर्षा ही है कि जिस वक्त हमें ज़रूरत है उस वक्त हमारे हाथ में पैसा आए, तो हमारे लिए तो ये मिरेकल से कम है ही नहीं, है ना, धन वर्षा ही है हमारे लिए। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी, सारा दिन में इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे साथ बीतती हैं कि मैं सत्संग कैसे मतलब इतने सारे सत्संग हो जाते हैं कि गुरु जी की कृपा हर पल हमारे साथ है। मैं संगत जी एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं मतलब ना सफ़र करते वक्त मुझे बहुत डर लगता है, सड़कों पे गाड़ियाँ देखकर मैं बहुत मत इन चीज़ों से बहुत डरती हूँ। और इसी वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे सफ़र नहीं कर, मैं ऑटो में भी कहीं जाती हूँ तो बहुत डरती हूँ, ड्राइवर गाड़ी में भी होती हूँ तो भी डरती हूँ, बाइक पे एक्टिवा पे डरती हूँ बहुत ज़्यादा। तो जब भी मैं अपने बेटे के साथ जाती हूँ, तो आजकल के बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, तो ये तो गाड़ियाँ ऐसे चलाते हैं और मैं उसको बोलती हूँ बेटा धीरे चला धीरे चला।
आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सारे रास्ते बटरफ्लाइज दिखती है, सारे रास्ते ऐसे ऐसे रास्तों पे भी बटरफ्लाइज दिखती है जहाँ मैं सोच भी नहीं सकती, जहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि बटरफ्लाइज वहीं पे होती है जहाँ प्लांट्स फ्लावर्स होते हैं, वो उन रास्तों पे भी दिखती हैं जहाँ पे ये सब नहीं होता। तो मैं बड़ी शॉक्ड रह जाती हूँ कि अरे गुरुजी मुझे बार बार बोलना चाहते, बेटा डर मत, मैं साथ में हूँ, चलाने दे उसको जैसे चला रहा है। गुरुजी की कृपा, गुरुजी ही जाने। और संगत जी, हम लोगों को गुरुजी पे से अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं गुरुजी नहीं कर रहे, हमें दुख दे रहे। नहीं, अगर हमें दुख भी मिल रहा है, हमें उस वक्त भी ये सोचना चाहिए कि गुरुजी हमें किसी अच्छी चीज़ के संकेत दे रहे हैं। शायद वो छोटे से दुख को निकाल कर बड़े चीज़ों को दिखा रहे हैं। एक और इसी के साथ ऐड ऑन करना चाहूँगी सत्संग के, मेरे हस्बैंड को मैंने लास्ट वीक बोला, मैंने कहा देखो मैं तो बड़े मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, आप तो उसी जगह आसपास हो, तो प्लीज़ आप जाके आओ। तो वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद शाम को जा रहे थे। तो जाते जाते वो प्रॉपर उसी जगह पे थे जहाँ पे बड़ा मंदिर था, दिल्ली वाला। और वहाँ जाके उन्होंने किसी से पूछा कि ये छतरपुर वाला बड़ा मंदिर कहाँ पे है। तो उन लोगों ने बताया कि वो देखो वो सामने ही है। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि बस मैं पहुँचने वाला हूँ। ये शाम की बात है, 5:30 या 6 बजे के नियर अबाउट। तो वो जा रहे थे, तो उन्होंने 10 किलोमीटर रास्ता पार कर लिया, तो वो घूम फिर के उस जगह पे चले गए जहाँ पे से वो शुरू हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि देखो अरे मैं तो गलत जगह पे आ गया, अब यहाँ पे मैंने कहा आप किसी से पूछो, है ना। उस दिन उनकी लोकेशन नहीं चल रही थी, पता नहीं गूगल लोकेशन उनके फ़ोन में चल नहीं रही थी। बोलते पता नहीं आज क्या हुआ मेरे फ़ोन में कि लोकेशन ही नहीं चल रही है। मैंने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है। तो खैर उन्होंने किसी से पूछ के बात करी, तो वो बोलते कि 10 किलोमीटर पीछे है। तो वो बड़ा हैरान हुए, बोलते कि अरे जिस आदमी ने मुझे भेजा वो बोला 10 किलोमीटर आगे, अब वो मैं फिर वहीं पे 10 किलोमीटर आगे पीछे जाऊंगा। खैर वो फिर चल पड़े, वो प्रॉपर जगह पे जहाँ पे पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। तो वो कहते कि मुझे मंदिर सामने दिख रहा है दूर से, लेकिन उस जगह पे भी आगे एक बंदा उनको मिला और वो बोला कि यहाँ से भी 10 किलोमीटर आगे चलना पड़ेगा। सच बताऊँ तो मेरे हस्बैंड उस वक्त टूट गए। यहाँ चलते 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 वो रात के मेरे ख्याल से 8 बज गए थे उनको वहीं पे, 7:30 बज गए थे, सॉरी। तो वहाँ पे से फिर वो बोलते कि एक पल के लिए ना मेरे मन में ये आ रहा था कि कहाँ, मतलब मेरी वाइफ ने मुझे फंसा दिया, अब कहाँ बोलने लग गए कि जाकर आओ। अब उसने बोला है तो मैं जाकर ही आऊँगा। बस उनके लिए एक चैलेंज था। वो चलते रहे, आखिरकार वो रात के 8:30 बजे पहुँच गए। वहाँ जाके मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो अब आप चाहे बाहर से ही दर्शन कर लो, लेकिन कर लो। लेकिन इतने अच्छे दर्शन उनको हुए कि हम बिलीव नहीं कर सकते कि, मतलब मेरे हस्बैंड अब जाते, उन्होंने रूम लिया हुआ है वहीं पे खाना वाना अकेले ही बनाते हैं वो। तो मेरे लिए भी एक पल में आया कि अरे यार रात हो गई, अब ये कब घर पहुंचेंगे, कब ये खाना बनाएंगे, इनको तो 12 बज जाएंगे रात के। लेकिन गुरुजी की कृपा थी, उन्होंने उनको बुलाया था तो सोचना भी था, उनके लिए सोच के रखा भी था। तो उन्होंने वहाँ लंगर प्रसाद उनको दिलवाया और मेरे हस्बैंड ने लंगर प्रसाद खाया। और वहाँ पे से उनको गुरुजी का स्वरूप मिला। और मेरे गुरुजी के लिए मेरे हस्बैंड के मन में ये आया कि, मतलब कहते जब मैंने स्वरूप लिया तो मेरे मन में आया कि अरे मैं तो घर से दूर हूँ, मुझे तो ऐसा स्वरूप चाहिए था जो हर पल मैं अपने पर्स में रख सकूँ या अपने साथ रख सकूँ, है ना, अपनी डायरी वायरी में रख सकूँ। तो ये तो बहुत बड़ा स्वरूप मिल गया। तो एकदम से वो बोले कि जैसे ही मैं गेट से बाहर निकल रहा था तो कहते मैंने किसी को पूछा कि भाई मुझे रास्ता बता दो, मेरी लोकेशन नहीं चल रही है। तो कहते उन्होंने मुझे बोला अरे फ़ोन को रीस्टार्ट करो आप। फ़ोन को रीस्टार्ट किया, कहते मेरी लोकेशन चलने लग गई। साथ लगते ही उन्होंने मुझे छोटा सा स्वरूप दिया, जैसा कहते मेरे मन में था। और मतलब हर इच्छा जो उस वक्त उनके मन में चल रही थी वो पूरी हुई करके वो घर वापस लौटे। और वो आराम से शांति से बड़ा संतुष्ट मन से वो बोले कि आज मुझे खाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आज मैं लंगर प्रसाद छक के आया हूँ। और बहुत संतुष्टि से वो घर पे आके सोए। नेक्स्ट डे हम लोगों ने जब भी ये बातें शेयर करी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हो सकता है देखो ज़िंदगी में इतने कष्ट हों कि वो कष्ट गुरुजी ने आपके रास्ते में ही निकाल दिए। 10 किलोमीटर आगे जाना, 10 किलोमीटर पीछे जाना, है ना।
तो शायद वो कष्ट ही थे जो आगे आने वाले थे, जो रास्ते में ही गुरुजी ने टाल दिए। और बस अब आप उम्मीद से रहना। और मेरे हस्बैंड हमेशा डोलते थे, वो बोलते थे कि नहीं तुम बोलती हो गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, गुरुजी सिर्फ हम लोगों को मैसेजेस दे रहे हैं, धन वर्षा होगी, धन वर्षा होगी, कब होगी। तो मैं बोलती थी नहीं, गुरुजी करेंगे, आप विश्वास मत डोलने दीजिए अपना, मत तोड़िए अपने विश्वास को, गुरुजी पे विश्वास रखिए। लेकिन आज देखिए कि हम लोग जैसे संतुष्ट हैं अपने ना, जैसे एक मंथली एक सेटिस्फाइड होता है इंसान कि हाँ हमारे एक मंथ के पूरे खर्चे निकल चुके हैं। तो वो जब मेरे हस्बैंड मेरे पास आए तो बोलते अब तुम सेटिस्फाइड हो, सारे खर्चे, तुम्हारी टेंशन दूर है, हर चीज़ मैं पूर्ति करके जा रहा हूँ और अब नेक्स्ट सैलरी का इंतज़ार है और नेक्स्ट मंथ भी हम लोग सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं संगत जी जो हमारे साथ हर दिन बीतती हैं, लेकिन हम लोगों को वो पता ही नहीं लगता कि हमारा पिता हमारे सिर पे बैठा है, वही कर रहे हैं और हम बस खुशियाँ ही खुशियाँ ज़िंदगी में। आज तो वो दिन आ गया है मेरी लाइफ में कि अब तकलीफ़ भी होती है तब भी मैं हँसती रहती हूँ। मेरी शक्ल अजीब सी, मैं अपनी शक्ल देखने पे वो हो गई थी कि मैं कैसी हो गई हूँ, शीशे में शक्ल नहीं देख पाती थी, इतना गंदा फेस लगता था मुझे टेंशनों से। लेकिन आज धीरे धीरे चाहे कहते हैं थोड़ा है, लेकिन और हर इंसान कहता है थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। वो थोड़े की ज़रूरत तो हर एक इंसान, चाहे वो लखपति करोड़पति भी हो, वो ज़रूरतें कभी इंसान की संतुष्टि होती नहीं है। लेकिन मैं आज ये कहने पे बिल्कुल खुशी खुशी कह रही हूँ कि मैं जितना है, गुरुजी ने जितना दिया है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ सत्संग ऐसे हैं जो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे आज्ञा दें और मुझे वो हक दें जिस हक से मैं अभी वंचित हूँ, जिस हक से मैं अभी दूर हूँ और मैं वो सत्संग आपको नहीं सुना पा रही हूँ। वो हक मुझे गुरुजी दें बहुत जल्दी और उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपको एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुनाऊँ, एक अनहोनी सुनाऊँ जो मेरे साथ बीती है, जिसके बारे में कोई भी आम इंसान सोच भी नहीं सकता। बस उस चीज़ का हक चाहिए, आज्ञा चाहिए गुरुजी से कि मुझे वो हक दें और उनकी आज्ञा से मैं वो सत्संग आप सबके सामने लेकर आऊँ। इसी के साथ आज का अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। बहुत सारी उम्मीदों के साथ कि गुरुजी बहुत सारे मौके देंगे अगले सत्संग के लिए। हर पल गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, हर पल। और बस जय गुरुजी संगत जी, आप सबको भी गुरुजी ब्लेस्ड करें और आप सब भी गुरुजी के साथ इसी तरह विश्वास के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। मैं क्या बताऊँ संगत जी गुरुजी के बारे में। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर नहीं भेजा था, लेकिन मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 7/5/24 को। मेरा चुंटनी में वडर था और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 8/5 को उनका डेथ हो गया। मैं अकेली पड़ गई। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड की पुण्यतिथि आ रही थी, दूसरी मासिक पुण्यतिथि 7/7/24 को, और मेरे उनको 7 दिन बाकी थे और मेरे पर एक मैसेज आता है गुरुजी का। मैं नहीं जानती थी गुरुजी को वो कौन है, लेकिन मैसेज आ रहा था कि ये 7/7 तू याद रखेगी, ये 7/7 को क्या होने वाला है तू देखती जा। मैं तो घबरा गई गुरुजी, मैं पूरा घबरा गई कि 7/7 मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी और अब कौन सी न्यूज़ मुझे मिलने वाली है। मैं बार बार वो मैसेज देखती रही
गुरुजी के मैसेज आते रहे। 2-3 बार मैसेज आए और फिर मुझे पता चला कि 7/7 को हमारे गुरुजी का जन्मदिन है और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था उसी दिन। तो गुरुजी मुझे कौन सा संदेश देने वाले हैं? इसके बाद मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। मैं अकेली पड़ गई थी, बहुत टेंशन में थी। मैं बच्चों को कैसे पालूंगी, लेकिन गुरुजी को देखती थी तो मुझे एक आशा की किरण जगी और मेरे जीवन में रंग भरने शुरू हो गए। आत्मविश्वास बढ़ गया और मैं जीने लगी। एक महीने मैंने गुरुजी को बहुत याद किया, बहुत मिस किया। देखती रही गुरुजी को, गुरुजी का सत्संग सुनती रही और 1 महीना हुआ तब गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आए ऐसा मैं नहीं कह सकती। मैं सजग अवस्था में ही थी, मेरी आंखें बंद थी, मैं गुरुजी को याद कर रही थी और वाइट तितली के रूप में मुझे गुरुजी दिखाई दिए। बहुत सारी वाइट तितलियां मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। फिर कल्ला ऐसा हुआ, फिर मैं उठ गई सुबह 5 बजे। फिर मुझे उसी दिन में 4 बजे से 5 बजे तक ऐसा हुआ, एक रंगीन स्टार दिखाई दिया। गुरुजी वाइट चोले में दिखाई दिए और रंगीन तितलियां मेरे आसपास इतनी घूम रही थी। मैं पूरा जग रही थी, सो नहीं रही थी। दिन था, मेरी आंखें ही बंद थी, लेकिन वो नज़ारा बहुत अच्छा था। मैंने कभी लाइफ में ऐसा चमत्कार नहीं देखा। सब आंटियां अब सत्संग सुनाती है, तब मैंने सुना था कि पतंगिए के स्वरूप में गुरुजी आते हैं। लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, और आंटियां सब इतनी पागल बन रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी में ऐसा क्या है, क्यों ये सब लोग पागल हो रहे हैं। लेकिन मुझे खुद साक्षात गुरुजी ने अर्ध जागृत अवस्था में रंगीन तितलियों के स्वरूप में, वाइट पतंगे के स्वरूप में, और गुरुजी हम जो दिवाली पे कोठी जलाते हैं ना, उसमें से जो चिंगारियां निकलती है, वैसे ही गुरुजी के चेहरे में से पूरी चिंगारियां निकल रही थी। ऐसा फीलिंग मुझे पूरे 2 घंटे हुआ और तब मैं होश में न रही, इतना रोई। और फिर मुझे एहसास भी हुआ कि अब मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। और जब मैं 2 घंटे के बाद जगी ना, तब मेरे मकान का सौदा नहीं हो रहा था। तो एक कस्टमर का फोन आया कि मुझे आपका मकान पसंद आया है और मैं आपका मकान लेना चाहता हूँ। और बाद में ऐसा हुआ कि मकान का सौदा हो गया। इस खूबसूरत ड्रीम के बाद मेरे मकान का सौदा भी हो गया और वो मेरी पहली कामयाबी थी। 2 साल से मैं जूझती थी, लेकिन मेरे मकान का सौदा नहीं हो रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे ड्रीम के बाद 1 मिनट के बाद ऐसा फोन आता है कि मकान का सौदा हो गया। मुझे इतना अच्छा लगा, जो काम 2 साल से पेंडिंग पड़ा था वो इसी सेकंड में हो गया। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। अब मुझे आशा जगी कि अब मेरे सारे काम होने वाले हैं और मैं मन में तय कर चुकी थी कि मेरी पूरी जिंदगी, मेरी 47 की उम्र है, मैंने कभी भी
इतना साक्षात्कार देखा नहीं, और मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिली है कि मैं जीवन भर उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ गुरुजी के साथ जीना चाहती हूँ। मैं पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहती हूँ। मैं पूरी लाइफ गुरुजी के चरणों में ही जीऊंगी, अब मैंने तय किया है। और अब मुझे कुछ चिंता फिक्र ही नहीं है। मैं अब अपने सारे काम, गुरुजी मेरे सारे काम करने वाले हैं, ऐसा मुझे तय हो गया है। मेरा पहला सत्संग मैं यही विराम देती हूँ। मैं आगे भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। मेरे सारे काम अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुझे बहुत ज़रूरत है मेरे सारे काम हो जाए, इसलिए मैंने सत्संग शेयर किया है। गुरुजी, सत्संग को शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, और सारी संगत को भी खुशियाँ देना। व्हाट्सएप पे जो भैया काम कर रहे हैं उनके भी सारी तमन्ना गुरुजी पूर्तता करना। और गुरुजी, मेरे भी काम हो रहे हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे काम होने ही वाले हैं, और मैं अगला सत्संग भी शेयर करूंगी गुरुजी। आज बस इतना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ जो सहज आपके चरणों में नमन वंदन है। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे आपा, शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।